Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology chapter number 11 homeostasis. Now we will discuss the homeostasis in plants. Okay students, as we have discussed earlier about the term homeostasis, what is homeostasis? Basically homeostasis is the process in which there is a maintenance of the internal body conditions at equilibrium despite changes in the external environment. It means कि आपके जो organisms की body होती हैं उनमें जो internal conditions होती हैं वो normal रहती हैं, constant रहती हैं और उनके ऊपर outside environment का effect नहीं होता. So students, now we will discuss how does homeostasis occur in plants. As you know that कि plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant through the process of homeostasis. So plants भी अपने जो internal conditions हैं वो normalize रखते हैं और वो normalize किसके through रखते हैं, वो different mechanism apply करते हैं. They apply different mechanism for the maintenance of the amount of water or the other chemicals. It means they apply different mechanism for the homeostasis of water and homeostasis of other chemicals like oxygen, carbon dioxide and nitrogenous materials etc. It means कि उनके अंदर water और ये जो chemicals हैं इनको maintain रखने के लिए different mechanism होते हैं. Now we will discuss in detail. So first of all we will discuss removal of extra amount of carbon dioxide and ऑक्सीजन. प्लांट्स कौन से ऐसे मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिनके थ्रू वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बॉडी में से रिमूव्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. We will discuss removal of carbon dioxide in tissue cells, in leaves and young stems, and in young roots. First of all, we will discuss removal of carbon dioxide in tissue cells. As you know that कि जो plants के tissues होते हैं, उनके जो cells होते हैं during day time, they perform photosynthesis. वो photosynthesis का process करते हैं और सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी करते हैं. सो सेलुलर रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं. सो सेलुलर रिस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इट इज़ यूटिलाइज्ड इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज नो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इनसाइड द टिश्यू सेल्स. लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, ये फिनोमेना चेंज होता है. ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट की यूटिलाइजेशन भी नहीं होगी ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो एट दैट टाइम क्या होगा कि आपकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब as you know that you have read in the class 9th biology about the term diffusion. What is diffusion? Diffusion is the process in which molecules move from high concentration towards the low concentration. It means कि आपके डिफ्यूजन प्रोसेस में आपके जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट है, सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट है वो वहाँ से आउटसाइड एनवायरनमेंट में लेस अमाउंट में मूव कर देंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. सो इट मीन्स कि आपके टिश्यू सेल्स में नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू सेल्स से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रिमूव्ड हो रही है. नाउ वी विल डिस्कस द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स. As we have discussed earlier that they are some sort of structure which are present in the leaves and the young stems. These structures are known as the stomata. Stomata are the openings which are present in the leaf epidermis or young stems. अब इन ओपनिंग्स के थ्रू जो एक्सेस अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो रिमूव्ड होती है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज द ओपनिंग which is present inside the lower epidermis of the leaf that is called the stoma. अब इसके थ्रू आपकी जो होती है एक्सेस अमाउंट जो होती है लीव्स और यंग स्टेम्स से कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है, रिमूव्ड हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन यंग रूट्स. सो इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस अमाउंट होती है वो कैसे रिमूव्ड होती है. एज यू नो इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस through the general root surface, especially through the root hairs. It means कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस अमाउंट यंग रूट्स के अंदर होती है वो आपके किसके थ्रू हो जाती है रिमूव, उनकी रूट सरफेस पे जो रूट हेयर्स होते हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिमूव कर जाती है. ओके स्टूडेंट्स,
ये हमने डिस्कस किए हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू सेल्स इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स एंड इन यंग रूट्स. नाउ वी विल डिस्कस द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन मीजोफिल सेल्स कि मीजोफिल सेल्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे रिमूव्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल मीजोफिल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी इनसाइड द लीव्स, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, साइड बाय साइड होता है. सो आपके जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मीजोफिल सेल्स में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और जो रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन की है वो किसके थ्रू रिमूव हो रही है, स्टोमेटा के थ्रू. इट मीन्स कि मीजोफिल सेल्स में जो एक्सेस अमाउंट होती है ऑक्सीजन की वो किसके थ्रू रिमूव्ड हो रही है, स्टोमेटा प्रोसेस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके थ्रू रिमूव्ड हो रही है.